Good morning, children. Once again, I hope that you people are fine at your home, enjoying your study by the help of YouTube, WhatsApp, and online group of our schools. Today again here we are in lecture number 4 of business study, lesson 1, that is nature and purpose of business. As you are already knowing, we are in continued process of business study chapter 1 in lecture number 4. Today the topic is characteristics of business. इसे हम कह सकते हैं characteristics of business, features of business, advantage of business, profit of business. Many points we can include in this topic. Today here we are going to discuss a very important topic of this lesson, nature and purpose of a business, that is characteristics of business. आप characteristics of business को features of business भी कह सकते हो, advantage of business भी कह सकते हो और profit of business भी कह सकते हो. So before I start this topic, I want to revise my previous lecture which you had studied day before yesterday. That is lecture number 3rd. On that particular lecture, I had told you the meaning of business. Business means to busy yourself for earning profit, that is called business. And that particular video I had derived in business two way of earning profit. मैंने आपको बताया था अर्निंग प्रॉफिट बिजनेस क्या होता है, उसी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. आपका एक नॉन इकोनॉमिक में किया था मैंने और एक आपका इकोनॉमिक में किया था. नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक में मैंने आपको समझाया था. तो those who are watching this lesson chapter very late and they did not learn about previous video, they no need to worry, just listen this topic. मैंने बिजनेस के बारे में बताया था, मीनिंग ऑफ बिजनेस में बताया था कि being busy yourself, that is called business in the form of earning profit. When you are earning profit, that is called business. समझ में आ रहा? Busy yourself to earn money, that is called business. और कैसे बिजी होते हैं? Human can be busy two types. One is non-economic activity, second is economic activity. Non-economic activity, when you busy yourself without earning profit, without earning money, that is called non-economic activities. And second one, when you are busy yourself by earning profit, for earning profit, that is called economic activities. This was the previous lecture revision I have revised you. I hope you people are fine and you are enjoying your study very well. आपको समझ में भी आ रहा होगा और बहुत ही deeply और slowly हम आपको समझा रहे हैं. You will get very soon because you people are new for commerce side and easy step by step you will get all the topic. आपको समझ में भी आएगा. I think you are clear. That is the meaning of business, being busy for earning profit, that is called business. Division of business into economic and non-economic activities, and human activities are also there. All activities are performed by human being. One is earning for money, that is economic activities. Second is non-economic activities without earning for money, that is non-economic activities. अब आइए हम देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है characteristics of business, features of business, characteristics of business. ये होता क्या है? तो आपका पहला पॉइंट है economic activities. देखिए many points are there. अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को समझ जाते हैं तो एग्जाम में अगर आपको फीचर्स पूछेगा, एडवांटेज पूछेगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं. क्योंकि पॉजिटिविटी ऑफ बिजनेस आपको हमेशा सेम मिलता है. तो पहला फीचर है बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है. बिजनेस को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. क्यों कहते हैं आपको ऑलरेडी पता है. इन बिजनेस में टू अर्न मनी, अगर आपको इसका नोट्स लिखना हो, आपको नोट डाउन करना हो कॉपी में, तो नो डाउट यू कैन डायरेक्टली राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पॉइंट नंबर 1, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. पीपल इज वर्किंग फॉर मनी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. I am also teaching here for money, that is called economic activity.
business. Now second point is sales or exchange of goods. Sales or exchange of goods. No, business में क्या होता है? गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं और गुड्स को बेचते हैं, यही होता है बिजनेस में ना. मेनी थिंग हैपनिंग इन बिजनेस ना. सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स मींस सेल्स करना, बेचना, एक्सचेंज करना, ये भी आपका एक फीचर है बिजनेस का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस का है. अब आया है नो इंटरनल यूज. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स को बनाया, फॉर एग्जांपल आपने एक केक बनाया घर पे. इस पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूँ सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आपको इसको मैं समझा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल आपने एक केक बनाया और उसी केक को अगर आपने फैमिली मेंबर में यूज कर लिया, घर में यूज कर लिया, तो क्या उसमें पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो उसे क्या कहेंगे? बिजनेस फीचर्स नहीं कहेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कहेंगे. जहां पे सेल्स और एक्सचेंज मनी के फॉर्म में हो जाता है, जब आपका गुड्स और सामान एक दूसरे से ट्रांसफर होता है, उसके बीच में ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करता है, मनी का ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करता है, उसे हम कहते हैं सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स. दैट इज आल्सो कंसीडर्ड अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. दैट इज आल्सो कंसीडर्ड अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. दोनों पॉइंट क्लियर में आया? फीचर्स पूछा जाए या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पूछा जाए तो आप कह सकते हैं बिजनेस हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. या आपसे क्या बोलते हैं, सेकंड पॉइंट दिया है सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आप जानते हो गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होता है? सेल्स भी किया जाता है, एक्सचेंज भी किया जाता है, मनी भी जनरेट होता है. ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में आता है. आई होप कि दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे. Any doubt, any difficulties, mention your comment. I will clear it the doubts. Now third point, regular basis. आप कहेंगे सर ये रेगुलर बेसिस क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में? रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, जैसे फॉर एग्जांपल वन सिंगल ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ बिजनेस. फॉर एग्जांपल ले लीजिए राम के पास एक शॉप है, he is having a shop and he done only one transaction. He has done only one transaction. रेगुलरली इनका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, लगातार ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा. महीने में एक ट्रांजैक्शन हो गया, साल में एक ट्रांजैक्शन हो गया, 6 महीने में एक ट्रांजैक्शन हो गया, तो इनका कैरेक्टर ऑफ बिजनेस नहीं कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस नहीं कहलाएगा, फीचर्स ऑफ बिजनेस नहीं कहलाएगा. जब तक रेगुलरली, कंटिन्यूअसली जब तक कोई ट्रांजैक्शन होगा नहीं, तब तक ये फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में नहीं आएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि ये तभी रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन माना जाएगा जब मोर देन 50, मोर देन 100, मोर देन 20 कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शन होता रहेगा और प्रॉफिट आता रहेगा, उसे हम कहेंगे रेगुलर बेसिस ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस. समझ में आ गया आपको? ये भी पॉइंट आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा आसानी से. ये भी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा. फिर से हम आपको बता देते हैं. देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस हमको देखना है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस देखते हैं तो रेगुलर बेसिस में होता है हमारा क्या? वन सिंगल ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड बिजनेस. इफ देयर इज अ मोर ट्रांजैक्शन इन बिजनेस रेगुलरली, that is a regular basis transaction under characteristics of business. Next point, important point, profit earning. बच्चा आप लोग बिजनेस करोगे, you will do business. Yeah, your father is doing business, your family member is doing business. What? Just for sympathy? Just for satisfaction? Just for what? Only for what? Money. Only for profit. Only for earning money. It is also be a part of characteristics of business, features of business. Business without profit there is a no business. बिना पैसे का कोई बिजनेस नहीं होता है. बिना पैसे का कोई बिजनेस नहीं होता है. You should know very well. समझ में आ रहा? Here everybody is doing business for earning profit. No one is doing business for self satisfaction, for sympathy, for
donation, nothing is there. Business means to earn profit. That is the characteristics of business. समझ में आ रहा है कि नहीं? I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, चांसेस ऑफ रिस्क, और विदाउट रिस्क देयर इज नो बिजनेस। विदाउट रिस्क देयर इज नो बिजनेस। व्हाट टाइप ऑफ रिस्क? What type of risk are there? बिना रिस्क का कोई बिजनेस होता है? नहीं होता है। आपको बता दें, बिना रिस्क का कोई बिजनेस नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, रिस्क इन द सेंस ऑफ प्राइस डिक्रीजेस द प्रोडक्ट यू हैव परचेजेस एट हाई रेट ऑफ प्राइस, शॉर्टेज ऑफ गुड्स, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स, एपिडेमिक रिस्क, मेनी रिस्क आर देयर, प्रोडक्शन रिस्क, क्लाइमेटिकली रिस्क, सब रिस्क होता है बिजनेस में। तो ये भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में आता है। आपको फिर से ये पॉइंट, फिर से ये चीज हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। आपको आई होप कि ये टॉपिक समझ में आएगा और समझ में आता होगा। जहां पे कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो आप डायरेक्टली कमेंट में लिखेंगे, और डोंट वरी, आपको जब भी सारे पॉइंट्स के हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। चाहे आप ग्रुप में नोट्स मांग सकते हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे मांग सकते हो, या ऑफलाइन स्कूल से आकर के जब भी आप स्कूल आओगे तो सारे चैप्टर का, सारे पॉइंट्स का मेरे पास नोट्स है। आई विल प्रोवाइड इट। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तब भी आपको समझ में आता होगा। फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हेन यू नीड अ नोट्स, आई विल प्रोवाइड अ फुल नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस। आपको समझ में आ जाना चाहिए। What you people are studying today? You are studying lecture number 4. Chapter is nature and purpose of business, and your book name is business study. Business study. The topic is characteristics of business. In previous lecture, I had told you the meaning of business and economic and non-economic activities. Economic earning profit, non-economic without profit. समझ में आया दोनों? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका पहला पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट की बात आ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम कहते हैं। सेकंड आपका आया सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जहाँ पे सामान बेचना, सामान एक्सचेंज करना, खरीदना मनी के फॉर्म में आ जाता है। किसी चीज को बेचते हैं, किसी चीज को एक्सचेंज करते हैं, वहां पे पैसा जनरेट हो जाता है। उसे भी हम क्या कहते हैं? फीचर्स ऑफ बिजनेस कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। अगर वहां पे इंटरनल यूज, फॉर एग्जांपल कोई सामान बनाया गया, प्रोडक्शन किया गया, उसको घर में यूज कर लिया गया, उसका पैसा नहीं मिला, उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिला, तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। जहां पे प्रॉफिट आएगा, जहां पे मनी आएगा, तब जाकर के वो आपका कहलाएगा। सेकंड आपका आया रेगुलर बेसिस। कोई सिंगल ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में होता है, इफ देयर इज अ सिंगल ट्रांजैक्शन टू प्लेस इन अ बिजनेस, देन व्हाट? देयर इज सिंगल ट्रांजैक्शन टू प्लेस इन बिजनेस, that is not considered as a business activities, as a characteristics of business. वहां पे रेगुलरली आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए। 100, 50, 20, 25 हर डे आपका सेलिंग ट्रांजैक्शन होना चाहिए। एक ट्रांजैक्शन से आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। थर्ड पॉइंट आया बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न अ प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट का आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो। बिना प्रॉफिट का आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो ये भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में आता है, फीचर्स ऑफ बिजनेस में आता है। विदाउट प्रॉफिट देयर इज अ नो बिजनेस। अब फिफ्थ पॉइंट आया आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर बिजनेस में रिस्क होता है। पता चला आपने स्टॉक ले लिया, स्टॉक रख लिया, स्टॉक रखने के साथ साथ अब आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे, स्टॉक आपका वेस्टेज हो जा रहा है। आपके पास क्या है? सेलिंग नहीं हो रही है, आपका मटेरियल वेस्टेज हो जा रहा है। तो बिजनेस भी एक पार्ट ऑफ रिस्क है। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? सबको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई बात नहीं, ये चीज आपका सब क्लियर हो गया। अब आपको एक आपको हम डिफिनेशन बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आपको समझ में आ गया, उसके बाद ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। ये सारे पॉइंट का नोट्स आपको, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मैंने डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इसके फीचर्स के नोट्स एग्जाम में मोस्टली आपको 5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट, मोस्टली 5 पॉइंट इन एग्जाम यू नीड टू राइट ओनली 5 पॉइंट इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज देयर, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग, एलिमेंट ऑफ रिस्क,
फेसिंग एग्जाम, अगर आपके एग्जाम में जैसे मैंने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस बताया यहाँ पे, अभी आपने कैरेक्टर देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस देखा था, इसी को क्वेश्चन पुटअप कर लिया जा सकता है। फीचर्स ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस, तो फीचर्स ऑफ बिजनेस में भी आप ये चीज लिख सकते हैं, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, economic activities to earn profit, इसी को आप लिख सकते हैं what, sales and exchange of goods and services, goods, ये भी आपका फीचर्स होता है। दोनों पॉइंट क्लियर करके कैरेक्टर ऑफ फीचर। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं व्हाट, रेगुलर बेसिस, बेसिस। फोर्थ पॉइंट आपका प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग। फिफ्थ पॉइंट आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये सारे आपके वही टॉपिक हैं, ये सारे आपके उसी चीज में आते हैं जो मैंने आपको अभी इससे पहले समझाया। फीचर पूछा जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए आपको बिजनेस का, तो ये सारे पॉइंट आप एग्जाम में इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप को सबको समझ में आया होगा, एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर ऑन टुमारो, नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द सेम बुक. You need to revise all this topic. Tomorrow I will explain it this again, then I will proceed ahead. Thank you. Good day.